lecture, I'll explain introduction, classification, and applications of liquid crystals. Normally, we consider matter to have a three distinct phases: solid, liquid, and gas. Solid, namely crystals, are highly ordered, in which atoms or molecules possess positional as well as orientation order. On the other hand, अगर हम liquid की बात करें like water or gases, they does not exist any ordered arrangement. So there are certain states of matter which do not meet this necessary condition for any of these category. So that state of matter which show the some properties of solid and some properties of liquid, that is the intermediate state of matter, that is called as liquid crystal state. So the liquid crystal state is the fourth state of matter that show the some properties of solid as well as the some properties of liquid. अगर हम सॉलिड जैसे आइस को अगर हीट करते हैं वो डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. सो आइस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द क्लियर लिक्विड और ट्रांसपेरेंट लिक्विड. बट अगर हम कोई लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये क्रिस्टल बिफोर चेंजिंग इनटू अ क्लियर लिक्विड, वो क्लियर लिक्विड चेंज होने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट आता है दैट शोइंग अ सर्टेन हेजी लिक्विड, और जिसका बिहेवियर एज अ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल की तरह होता है, एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज लिक्विड क्रिस्टल स्टेट. So before changing into the pure liquid, the liquid which is show the haziness, or they will show the property of anisotropic, that is called as liquid crystal state. So liquid crystal state is a intermediate phase, or it is also known as semi-solid. That means they will show the some property of liquid, just like the mobility, movement show कर रहा है, but they will show the property of solid also, just like anisotropic material. Anisotropic, that is the property of material which is directional dependent, and the isotropic is the property of material which is independent of direction. So the liquid crystal show the property of an isotropic material. Now the definition of liquid crystal. So the proper definition: the phase which is intermediate of solid and liquid and which has the property in between two crystalline solid and true liquid is called as liquid crystals. So liquid crystals में हमें solid के भी properties mention होते हैं और pure liquid के भी कुछ properties हैं. जैसे प्योर सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ हो गए आपके ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी. दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो कि लिक्विड क्रिस्टल शो करता है. एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर लिक्विड जस्ट लाइक फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर लिक्विड. सो द लिक्विड क्रिस्टल्स विच शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ सॉलिड एज वेल एज pure liquid. So liquid crystal is also known as intermediate state, and it is also known as the mesophase or the middle phase. Liquid crystals play a very important role in modern technology. Liquid crystals firstly discovered by Austrian botanist Friedrich Renitzer in 1888. The crystal name is पैराकोलेस्ट्रल बेंजोइट. सो पैराकोलेस्ट्रल बेंजोइट को जब हमने हीट किया सो हमें दो टेम्परेचर मिले. फर्स्ट टेम्परेचर इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, एंड द ट्रांजिशन टेम्परेचर दैट इज 145 डिग्री सेल्सियस, एंड द अदर वन इज मेल्टिंग टेम्परेचर दैट इज 178 डिग्री सेल्सियस. तो जब आप इस 145 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर था, इस टाइम पे जो हमें सब्सटेंस मिला वो उसका नेचर क्या था, लिक्विड क्रिस्टल की तरह. दैट मीन्स दे हैविंग शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड. हेजी लिक्विड मिला और
टर्बिड लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड क्रिस्टल। फिर हमने टेम्परेचर को और बढ़ाया अप टू 178 डिग्री, तब हमें एक क्लियर लिक्विड मिला। दैट क्लियर लिक्विड दे विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर लिक्विड। So firstly it was discovered by Austrian botanist Friedrich Renitzer in paracholesterol benzoate। प्योर लिक्विड में जनरली क्या करेक्टर्स होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के जो ऑर्डिनरी लिक्विड से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो जो हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है, और जो उनका स्ट्रक्चर यूनिट होता है वो रॉड शेप्ड होता है। ओके, सो अगर इसका हम बात करें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, तो इसमें मिनिमम 2 एरोमेटिक रिंग रहती है। ओके, ये दोनों एरोमेटिक रिंग हमारी एक लिंकेज ग्रुप के साथ अटैच्ड होती है, और इनके टर्मिनल पे हमारा टर्मिनल ग्रुप और साइड चेन ग्रुप होता है। सो दैट इज़ द बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स। सो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? मीजोजन। जनरली जो मीजोजेंस होते हैं वो रॉड लाइक रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर इस एग्जाम्पल में हम बात करें तो जो हमारा ये पार्ट हो गया, ये रॉड लाइक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये पार्ट हो गया हमारा मीजोजन। दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। मेनली ये जो मीजोजन होते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल के आपके स्ट्रक्चर ऑर्डर को बताते हैं। ओके, और लिक्विड क्रिस्टल्स में हमारा एक तो ये मीजोजन हुआ, और दूसरा पार्ट हमारा फ्लेक्सिबल पार्ट होता है जो टर्मिनल और साइड चेन्स होते हैं। जो फ्लेक्सिबल पार्ट होता है वो डिसाइड करता है लिक्विड क्रिस्टल की फ्लूइडिटी को। ओके, सो लिक्विड क्रिस्टल्स नॉर्मली लिक्विड से किस तरह डिफ्रेंशिएट होते हैं? उनमें हमारा रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मीजोजन। और उसके साइड में और टर्मिनल में हमारे वेरिएबल और फ्लेक्सिबल पार्ट्स होते हैं जो कि मोबिलिटी डिसाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जो फ्लेक्सिबल और मोबिलिटी डिसाइड करते हैं। सो दैट इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज MBBA मिथॉक्सी बेंजिलिडीन ब्यूटाइल एनालीन। हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्कस करेंगे। सो जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो फर्स्टली क्लासिफाई होते हैं थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स एंड लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। सो थर्मो मीन्स टेम्परेचर। सो द लिक्विड क्रिस्टल्स विच डिपेंड अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर्स आर कॉल्ड थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। एंड लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होंगे? द क्रिस्टल्स विच डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर as well as the concentration of mesogen, that is called as lyotropic liquid crystals। so जो हमारे thermotropic liquid crystals होते हैं वो generally technical applications में यूज़ होते हैं, इसके जितने examples हैं। और जो lyotropic liquid crystals होते हैं वो हमारे biological systems में ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसके examples जैसे कि membranes में। ओके, और हम फर्दर इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, नेमैटिक, सिमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स, एंड द थर्ड वन इज कोलेस्ट्रिक, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कायरल लिक्विड क्रिस्टल्स। नाउ अब इनका हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन का। नाउ द फर्स्ट वन इज thermotropic liquid crystals. Already explained, the liquid crystal are said to be thermotropic if the liquid crystal's property depend upon the temperature. तो इनके 3 टाइप्स थे। फर्स्ट वन इज नेमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। सो नेमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं, तो इसमें जो नेमैटिक का मतलब होता है, नेमैटिक मीन्स थ्रेड लाइक। ओके, नेमैटिक मीन्स थ्रेड लाइक, एंड इन पोलर light they appear to have a mobile thread like structure. Second point, pneumatic crystals, the molecules or the fundamental unit mesogens have no positional order but they have a long range of orientation order. जो उनका orientation order होता है वो long ranged होता है in case of pneumatic crystals.
and the molecules are aggregate together in a group with their axis parallel to one another. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेटेड फॉर्म में रहते हैं और पैरेलल टू वन अनदर. निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स की जो फ्लूइडिटी होती है नॉर्मली ऑर्डिनरी लिक्विड की तरह होती है, बट ये एक्सटर्नल और मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को अलाइन कर पाते हैं. ओके, सो फ्लूइडिटी तो नॉर्मल लिक्विड की तरह होगी, बट दे कैन ईजिली अलाइन बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड. सो निमेटिक का अरेंजमेंट हम देखेंगे, ये मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज्ड है. अगर इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम में, और अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो इस तरह से मॉलिक्यूल हमारे लॉन्ग फॉर्म में मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स: पैरा एजॉक्सी एनिसोल, पैरा एजॉक्सी फेनेटॉल एंड पैरा मेथॉक्सी सिनेमिक एसिड्स. नाउ द सेकेंड वन इज सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स. In cymatic liquid crystals, they are found at lower temperature and as compared with a nematic crystal. Nematic के कंपेयर में ये lower temperature पे मिलते हैं. Cymatic का मतलब होता है soap like. These crystals are arranged in layer and slide over one another. ये जो liquid crystal है nematic में हमने देखा था long orientation order में और aggregated form में थे, बट जो cymatic होते हैं ये लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे ये एक लेयर हुआ, फिर ये दूसरा हमारा लेयर हो गया. तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. निमेटिक में लॉन्ग रेंज था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, और सिमेटिक हमारे लेयर के फॉर्म में है और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं. दे डू नॉट फ्लो एज अ नॉर्मल लिक्विड, बल्कि निमेटिक नॉर्मल लिक्विड की तरह फ्लो कर रहा था. क्योंकि ये सोप भी टच होता है, लेयर के फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये नॉर्मल लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करते. और जो इन दो लेयर्स के बीच में वीक इंटरलेयर फोर्सेस होते हैं, ओके, जो उसको सोपी टच के तरह मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं. और इनमें स्मॉल ओरिएंटेशन एंड पोजिशनल ऑर्डर प्रेजेंट होता है. नाउ द एग्जाम जो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. सिमेटिक हमारे लेयर फॉर्म में होते हैं, चाहे इस तरह से लेयर हो या इस फॉर्म में लेयर हो. ओके, लेयर फॉर्म में अरेंज्ड होंगे. इसके एग्जाम्पल्स हो गए इथाइल पैराइजॉक्सी बेंजोइट एंड इथाइल पैराइजॉक्सी सिनामेट. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स. कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स ऑल्सो नोन एज कायरल लिक्विड क्रिस्टल्स. इसका नाम कोलेस्ट्रिक क्यों बताया गया? क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल से मैच करता है. और ये जो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये कलर इफेक्ट देते हैं अंडर पोलराइज्ड लाइट. दे क्रिस्टल पोसेस हाई ऑप्टिकल रोटेटरी पावर. और ये क्रिस्टल्स भी हमारे लेयर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं. और इस क्रिस्टल्स का अपीयरेंस कैसा होता है? ट्विस्टेड निमेटिक क्रिस्टल्स. जैसे निमेटिक क्रिस्टल तो स्ट्रेट हो गए, इसको अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा? डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह शो होगा. सो दिस क्रिस्टल अपीयर एज अ ट्विस्टेड निमेटिक स्ट्रक्चर. इसका जो हमारा ये डायग्राम हो गया, दैट इज़ अ ट्विस्टेड निमेटिक क्रिस्टल्स के इस तरह से डायग्राम हो गए. और इसके एग्जाम्पल्स हो गए पॉलीबेंजाइल एल ग्लूटामेट, पॉलीबेंजाइल डी ग्लूटामेट. लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है. और इसमें जो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पिच? द डिस्टेंस फॉर वन फुल रोटेशन. इस कंप्लीट रोटेशन का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज पिच. इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो पूरा रोटेशन हो गया, दैट फुल रोटेशन दैट इज कॉल्ड एज पिच. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स. So lyotropic liquid crystal that depend upon the temperature as well as the concentration of mesogen. So in lyotropic liquid crystals में अगर दो different substance को हम mixed करते हैं तो इसमें आपका जो mixture होता है that can exhibit different phases, not only as the temperature is changed but also as the concentration of वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज वेरिड. तो जो हमारे दो मिक्सचर को अगर हम ऐड करेंगे तो अगर एक का कंसंट्रेशन जो चेंज होगा उस बेसिस पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स फॉर्म्ड होते हैं.
नेक्स्ट जो लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, जो आपके एम्फिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. एम्फिलिक मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स दैट हैज एंड ग्रुप विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. वन इज हाइड्रोफोबिक एंड अदर वन इज हाइड्रोफिलिक. सो ये जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये जैसे इसमें हमारे पोलर हेड ग्रुप्स अटैच टू वन नॉन पोलर चेन्स, जैसे हमारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं, सरफेक्स एक्टिव रिएजेंट्स होते हैं. जनरली जो लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये हमारे लिविंग सिस्टम्स में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन्स हो गए, जिनमें जो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है फॉस्फोलिपिड्स का होता है. कई प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो उन पे भी हमारे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफेबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. जो सर्फेक्टेंट्स हो गए, माइसलेज हो गए, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स. नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स. सो फर्स्ट पॉइंट, एज द टेम्परेचर सेंसर्स, it is used as a temperature sensors in thermometers. All of you know that liquid crystals are categorized on the basis of classified on the basis of temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, उनका ओरिएंटेशन ऑर्डर चेंज हो जाता है. तो अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा तो वो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट चेंज होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिक्विड क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है, जिससे हम टेम्परेचर को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेल्योर इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट में भी अगर जहाँ पे पोटेंशियल फेल्योर होगा वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा और वो लिक्विड क्रिस्टल उसको तुरंत सेंसर कर जाता है. It is also locate the blockage in vein, arteries, infections and tumors by skin thermography, or it is also used in a cancer to detect the cancerous cells. All of you know that कि जहाँ भी हमारा ट्यूमर होगा बॉडी में, या कैंसरस सेल्स होंगे, या कोई भी इन्फेक्शन होगा, उस पार्ट का बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉडी पार्ट टेम्परेचर. तो जहाँ पे कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लिक्विड क्रिस्टल्स को उस बॉडी पार्ट में लगा देते हैं, और जिस जगह पे जहाँ पे हमारा इन्फेक्शन होगा या ट्यूमर्स डेवलप होगा वहाँ का टेम्परेचर चेंज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा लिक्विड क्रिस्टल्स का ओरिएंटेशन ऑर्डर चेंज होगा और वो कलर चेंज कर देता है, एंड वी विल ईजिली डिटेक्ट कि इस पार्ट पे हमारा ट्यूमर है. सो लिक्विड क्रिस्टल ऑल्सो हेल्प to detect the tumors by the skin thermography. One of the most important application is the liquid crystal display. LCD display में भी liquid crystal use करते हैं, जैसे डिजिटल वॉचेस में, कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में, LCD जो हमारे स्क्रीन्स होती है उन सब में हम लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन chromatography. So these are the applications of liquid crystals. Thank you all of you for watching this video.